Hello and welcome to another episode of this podcast. In this episode, we'll talk about digital horizons. Yes, where we dive into the future of online marketing and its influence across sectors. Today, we are thrilled to have Shivam Ahuja with us, a trailblazer in the digital marketing realm known for shaking up the industry. Along with our host Mandy, let's welcome Shivam Ahuja. Hi Shivam, how are you? Hey, hi Manny, I'm good. Hey, all right. It's been great to have you on the show. It's been a long time that we know each other, and we have been lots of people know you from as you've been an entrepreneur. You have helped lots of founders for startups. Tell me about yourself. I want to hear from you. So first of all, thank you for having me here, Mandy. I still remember since how long we are connected, Yes. and thanks for having me on the show. And regarding my introduction, many people actually know me. I'm the founder and CEO at Skill Circle. But around a decade back, when there was no kind of Shark Tank India was Yeah. not existed. I help lot many startups. In fact, I am the founder of a community called Delhi Startups, Okay. and we have more than 50,000 founders in the community. 50,000? And yeah, that's correct, right? And out of 50,000, we help multiple startups in raising multi-million dollars from different investors. That's how I started my journey, after my college or after my kind of job at different MNCs out there. That time I realized कि भाई startups में बहुत दम है and कहीं ना कहीं इस space के आसपास में रहना चाहिए. And that made me actually realize कि yes, this is very true. I'm going to be a founder and CEO plus a impact business. Because जब startup के साथ में काम किया तो मुझे ये समझ में आया कि startup is not just a business. Yeah. It's a business with innovation, with scalability, and some of startups are actually impact driven. Yeah. And that made me realize कि मुझे कुछ ऐसा impact driven business करना है. That's how Skill Circle born 8 years back, and today I'm here. Because that way I saw when there was not Shark Tank, and you really before that your mind was probably boggling, and you were doing we had a long chat on investors and angel investors. You know what, Mandy? Well, 10 years back, I was so it looks like हम तब बात कर रहे थे. Now the things are happening. Yes, actually. That's I wanted to tell all the audience who are actually seeing this episode. Yeah. India is going through a digital transformation. Yes, bro. And transformation so massive that you can't imagine. आज हमारी technologies, be it UPI or other technologies out there, हम पूरी दुनिया को बेच रहे हैं. And जब वो इतनी सारी चीजें हो रही हैं, then imagine कितनी बड़ी opportunity है once in a lifetime, जहाँ पे इंडिया में entrepreneur बनकर पैसा कमाया जा सकता है. और मुझे लगता है ये ईरा को मिस नहीं करना चाहिए. एक टाइम पे .com बबल आया था, एक टाइम पे NFTs आए थे, एक टाइम पे ब्लॉकचेन आया था. आज ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी जारी है, जिसमें AI भी आ चुका है और भी बहुत सारी चीजें आ गई है. ये सही टाइम है एक एंटरप्रेन्योर बनने का, एंड इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है. कल न्यूज पढ़ रहा था इंडिया की. इंडिया में पढ़े लिखे बेरोजगार ज्यादा है कंपेयर टू अनपढ़ लोग. एंड ये इंडिया की रिपोर्ट नहीं है, ये वर्ल्ड लेवल की रिपोर्ट है. तो सोचो वर्ल्ड में हमारी इमेज ये जा रही है कि इंडिया में पढ़े लिखे लोगों के पास में जॉब नहीं है. इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम. तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम बड़ी है और इसके लिए सॉल्यूशन भी बड़ा होना चाहिए. एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इन इंडिया. वी हैव बिल्ड अ कंपनी कॉल्ड स्किल सर्कल, जहाँ पे हम लोगों को कंपनीज को टैलेंट प्रोवाइड करते हैं. एंड वो टैलेंट डिजिटल का भी है, डेटा का भी है, और वो टैलेंट उन स्टूडेंट्स को पढ़ा कर करते हैं जो यूनिवर्सिटी में भी गए हैं, शायद नहीं गए, बट ड्यूरिंग 3 to 6 months ऑफ देयर रिगरस ट्रेनिंग अंडर अस, they are all prepared to join these companies. And with God grace अभी तक हमने more than 1 लाख स्टूडेंट्स को पढ़ाया है पिछले 8 सालों के अंदर में. कितने? 8 सालों में 1 लाख स्टूडेंट्स को. एंड ये रिगरस ट्रेनिंग में गए हैं. दे आर नॉट समथिंग कि जिन्होंने एक रिकॉर्डेड लेक्चर ले लिया और समथिंग लाइक दैट. दे हैव गिवन अ रिगरस ट्रेनिंग ऑफ 6 months. एंड द बेस्ट पार्ट, जैसे मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में आप किसी भी कंपनी में जाइए और उनके यहाँ पे जो डिजिटल मार्केटर पोजीशन पे कोई इंसान काम कर रहा है, 10 में से 4 मार्केटर्स हमारे हैं. वी क्लेम टू दैट मार्केट शेयर वी हैव. सो वी प्राउड ऑफ द नंबर्स इन द बेंचमार्क्स, बट दिस इज जस्ट बिगिनिंग. मुझे लगता है बहुत बड़ा स्कोप है जिसको लिवरेज किया जा सकता है फॉर श्योर. मैं हमेशा से बोलता हूँ जाइए. इनफैक्ट आई रेड अ बुक कॉल्ड कॉर्पोरेट चाणक्य. बड़ी फेमस बुक है, राइट? उनके ऑथर बोलते हैं कॉर्पोरेट चाणक्य. एंड उनके जो ऑथर है वो एक बात बोलते हैं कि मैं सबको बोलता हूँ, इंडियंस को बोलता हूँ, जाओ अब्रॉड जाओ. हमारे देश की गवर्नमेंट बोलती है आप इंडिया में रह के काम करो, कहते हैं जाइए अब्रॉड जरूर जाइए, प्रूव करके आइए अपने आप को कि आप अब्रॉड गए और अपने पैसा कमाए, बट वापस भारत आइए. तो मेरा ऐसा काम है ना कि अगर किसी को मौका मिल रहा है बाहर जाने का, जरूर जाओ, लेकिन आप वापस आओगे इंडिया, क्योंकि इंडिया में बड़ा इकोसिस्टम है जिसमें कुछ बड़ा किया जा सकता है. मेरा ऐसा मानना है.
I think so too. So there's a lots of opportunities are open now in India. I came after like a long time, but India में इतनी opportunity बदल गया. I appreciate, and the level of transformation is there. I've seen. I think so. I'll ready to help anything as a consulting to people who wants to not educated or they just think कि visa ले लो और निकल जाओ. उसके बाद भी there's a big exposure. कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, क्या काम करना है. Because lots of people have families, some people doesn't have family. True. So we try to help them, and they can email us, even ask us. We can tell them number of the question and answers for them, because उधर students study के साथ भी काम कर सकते हैं, and even they need that guidance. तो आजकल के जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो कॉलेज की डिग्री के बावजूद भी जॉबलेस हैं, Jobless हैं। ये हालत है मार्केट की। बीकॉम बीएससी बीबीए की करनी, डिग्री करने के बाद में 20,000 रुपए की नौकरी नहीं है, बट नौकरियां हैं, बट लोगों के पास में वो स्किल नहीं है। और मुझे लगता है स्किल गैप को अगर फिल कर दिया जाए तो एक मैसिव रेवोल्यूशन इंडिया में डेफिनेटली लाया जा सकता है। 200%। Do you think शिवम के अभी आते हुए फ्यूचरिस्टिक रिवोल्यूशन में इतना कुछ बदल रहा है? The information the people are getting, people informed कि यहाँ से हम लोग अच्छी एक डिग्री पढ़ के बाहर चले जाते हैं. Do you think there is a future of digital marketing in overseas that UK, Canada, America, यहाँ पे एक branches खुलनी चाहिए that people should be educated, because as far I have seen the people are still not that educated well in digital marketing in overseas. If we see there is a platform that can be created all over the overseas. So मैंडी, मेरा ऐसा मानना है कि जो स्टडी अब्रॉड की मार्केट है वो बहुत ह्यूज है, और कोई भी स्टूडेंट अगर अब्रॉड जाता है वो शायद 3 रीजन के कारण जाता है। एक बेटर एजुकेशन, हालांकि इंडियन एजुकेशन बहुत अच्छा है, बट आज भी अगर आप देखो हम यहाँ पे मार्केटिंग में जो चीजें पढ़ रहे हैं वहां पे कुछ और पढ़ाया जा रहा है, वहां पे वो नेक्स्ट लेवल की पढ़ाई की जा रही है। मार्केटिंग डिफरेंट है, तो वो इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे अच्छे एजुकेटर्स चाहिए, अच्छे बेंचमार्क्स चाहिए जिनकी हम वो प्रैक्टिकल नॉलेज दे सके, इसलिए स्टूडेंट बाहर जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है अच्छा पैसा। आज हमारे देश में बहुत अच्छा पैसा है, ऐसी बात नहीं है, बट स्टिल एक अर्ली फ्रेशर की जॉब वही 20,000, 30,000, 40,000 की 20,000 तक। तो एक यंगस्टर क्या चाहता है कि अगर मेरे पास में टैलेंट हो तो मुझे वैसा पैसा मिल सके। और मेरा ऐसा मानना है पैसा मिल सकता है इंडिया में अगर उसके पास में और स्किल्स हो और थोड़ा सा एक्सपोजर। जो कॉलेज का बच्चा 3 साल वेस्ट कर देता है, अगर वो एक्सपोजर मिल जाए उस टाइम पे, मैसिव डिफरेंस आ सकता है अर्ली सैलरीज को पुश करने के लिए। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट जो मेरा ऐसा मानना है कि जब कोई स्टडी अब्रॉड के लिए बाहर जाता है तो उसे एक्सपोजर चाहिए होता है ना। अब मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो 2 तरह के बिजनेस है, एक स्टार्टअप और एक लाला टाइप बिजनेस, जिसमें बिजनेस बोलता हूँ। ऑलवेज गो फॉर स्टार्टअप इवन यू गेटिंग लेस मनी। ये बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप उस कम पैसे में ज्यादा एक्सपोजर ले लेंगे, वो ज्यादा एक्सपोजर फ्यूचर में ज्यादा पैसा देगा। लोगों को लगता है मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूं, मुझे शुरू में ज्यादा पैसा चाहिए, एक्सपोजर ना मिले चलेगा। ये गलत थिंकिंग। और मुझे लगता है कि सिर्फ पढ़ाई लेवल पे नहीं, माइंड लेवल पे शिफ्ट करने की जरूरत है, और हमारा स्कूलिंग में कहीं ना कहीं ये बदलाव लाने पड़ेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप को और ऐसी चीजों को इनकलकेट करना पड़ेगा कि बच्चा पढ़ते हुए अपने आप से पूछे क्यों, वो बहुत जरूरी है। हमें किस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स की तरफ ध्यान देना चाहिए या क्या जाना चाहिए? बिकॉज देयर इज एन एसेट्स, गोल्ड लेना है, प्रॉपर्टी लेना है, गोल्ड लेना है, प्रॉपर्टी, बट कोई रेंटल इनकम नहीं देखता, लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन नहीं देखता। व्हाट यू विल एडवाइस अस? मैं इसके बारे में ज्यादा नॉलेज तो नहीं रखता, लेकिन मार्केटिंग फ्रंट पे अगर मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनीज को मार्केटिंग के थ्रू करोड़ों रुपए का बिजनेस बनाते हुए देखा। एंड आई हैव सीन सम बिल्डर्स हु आर मेकिंग मैसिव मनी सिटिंग इन इंडिया सेलिंग प्रॉपर्टीज इन दुबई just through all digital. So there is a huge opportunity, I should say that. And if you're an entrepreneur, you're a marketer, you should leverage real estate in the marketing angle. It's huge. Is this some kind of an app that can be help all the people, those from the a different world, and they have lots of projects and they want to put on, not able to possible on your website? मेरा ऐसा मानना है। What you will say? What should we change advanced way thinking? कि हम अगर किस तरीके से next level पे ले जाके, अगर किसी को 100 solid projects दिखाने हैं, and investor is very big, and let's we can't keep sending them emails and all that. They wanted what kind of a systematic presentation should be that they can open the app or something. What should be done in digital world? जो real estate वाले लोग हैं ना, जिन्हें बेचना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझिए जो इन्वेस्टर है वो आपकी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो आप में इन्वेस्ट कर रहा है ना। बंदे की वैल्यू वो क्या बेच रहे से नहीं, वो कौन है से वैल्यू होती है। अगर आज मैं आपके पॉडकास्ट में आया तो आई नो हु मैंडी इज, राइट? दैट्स व्हाई आई केम हियर। मैं सिर्फ इसलिए नहीं आया कि शो में कितने एपिसोड हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं, दैट्स व्हाई आई एम हियर, राइट? सिमिलरली जो रियल एस्टेट वाला बेच रहा है उसको अपनी वैल्यू बढ़ानी चाहिए, उसके अपना औकात बढ़ानी चाहिए। बिकॉज व्हेन इन्वेस्टर सी इन हिज आई, वो देखता है कि तेरे में कितना कॉन्फिडेंट तो मुझे बेच के दिखाएगा। क्या चीज बेच रहा है? इट्स नॉट इजी, राइट? इट्स अ बिग टिकट, मैसिव बिग टिकट। इट्स नॉट अ वर्थ 1,000 or 10,000, it's in crores. So imagine someone is investing in crores.
उसका जो ROI एक्सपेक्टेशंस है वो काफी ह्यूज है. जी. तो जो विजन अगर मैच नहीं हुआ ना, वो प्रॉपर्टी कभी नहीं बिक पाएगी. हाँ. तो विजन और एक्सपेक्टेशंस को मैच करने के लिए जो बंदा सेलर है उस पर इतनी इंफॉर्मेशन और इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए. रिगार्डिंग हाउ डू यू वांट टू प्रेजेंट इट ऐप के थ्रू, वो सब सेकेंडरी चीजें. बट द फर्स्ट इज आपको पता होना चाहिए हु द बायर इज, how you're acquiring them, how you're building that trust factor. It's a long process. It's not just a one-term deal. No. Legal terms. It's not a legal terms transaction. and all There are that so many thing. touch points out there. There are too many touch तो points. मुझे लगता है वो टच पॉइंट्स को दिमाग में रख के अगर कोई रियल एस्टेट में काम करता है, they can make massive money provided they add relationships to it. Because relationship बहुत चलते हैं इस रियल एस्टेट मार्केट. एक और चीज मैं बताना चाहूंगा मैटी, बिकॉज इट्स वेरी जर्नल मार्केटिंग थिंग, बट मुझे लगता है कि पता होना चाहिए जो लोग रियल एस्टेट में मार्केटिंग करने के लिए बेच रहे हैं. मार्केटिंग में एक फनल होता है जिसे हम टोफू बोफू मोफू बोलते हैं, राइट? टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल. ये हर जगह इम्प्लीमेंट होता है, चाहे आप रियल एस्टेट बेचो, चाहे आप फाइनेंस बेचो, चाहे आप हेल्थ टेक बेचो, चाहे आप एजुटेक बेचो. जैसे हेल्थ में डॉक्टर क्या करते हैं, आपने टोफू में टॉप ऑफ द फनल में उन पेशेंट्स को फ्री एडवाइजरी करके लेकर आते हैं. आपने देखा होगा बहुत सारे फ्री कैंप्स होते हैं, वो आपको फ्री टेस्ट कराते हैं. वो टॉप ऑफ द फनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जब टॉप ऑफ द फनल होता है तो लोग आते हैं. फिर मिडिल ऑफ द फनल में आप उनसे कन्वर्सेशन करते हो, उनको फ्री वेबिनार्स देके उनसे कंसल्ट करते हो. फिर बॉटम ऑफ द फनल में आप ट्रांजैक्शन की बातें करते हो. कुछ लोग इसे उल्टा कर देते हैं, बॉटम ऑफ द फनल में वो पहले बेचने लग जाते हैं. जैसे मैं आज आपसे मिला और मैं सीधा पैसे की बात कर रहा हूँ, आई एम फूल अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ. तो इसीलिए मार्केटिंग नहीं, रियल एस्टेट नहीं, हर एक फील्ड के अंदर में ये फनल अप्रोच होनी बहुत जरूरी है. अगर कोई रियल एस्टेट में कर रहा है तो आप सोचिए कि अभी बेचने पे नहीं, लोगों को जोड़ने पे फोकस करना. अगर आप रियल एस्टेट कर रहे हैं तो आपको पता है कि रियल एस्टेट के बिजनेस में B2B से ज्यादा बिजनेस आता है rather than B2C. तो आप इवेंट्स पे फोकस कीजिए, ज्यादा लोगों को एंगेज कीजिए. सोचिए HNI का नेटवर्क कैसे अपने पास में बनाए. जो नेटवर्क आएगा फिर वो आपके मिडल ऑफ द फनल में आएगा. फिर कुछ कन्वर्सेशंस क्रिएट कीजिए, कुछ ट्रस्ट स्टोरी बनाइए, कुछ कन्वर्सेशंस बनाइए, कुछ टेस्टिमोनियल्स बनाइए. उसके बाद में जब आप बेचेंगे तो बेचना आसान होगा, हाई वैल्यू होगा, हाई प्रॉफिट होगा. अगर आपने इसी को उल्टा कर दिया, लो प्रॉफिट, थिन मार्जिन एंड ब्लीड हो सकता है. तो ये फनल अप्रोच अगर आप रखेंगे किसी भी बिजनेस में, मुझे लगता है बहुत अच्छा बिजनेस आ सकता है. As an influencer marketing, all rage now, but the challenge of the finding right match. And what would you advise to give us, the brand looking to a partner with influencer, ensure both side benefits? Is that you can tell something about it? I got your point, right? मतलब कहने का पर्पस ये है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, there are so many right now. Yes. You know, everyone claiming कि मेरी ऐसी ऑडियंस है और ऐसा. And honestly, मतलब मेरा ऐसा मानना है आधे से ज्यादा लोगों की दुकानें बंद होने वाली हैं, right? Because everyone wants actually an influencer. ऑफिस से हट के ज्यादा influencer. हर कोई अगर इन्फ्लुएंसर बन जाएगा तो ऑडियंस तो उतनी है. ऑडियंस एंड ऑफ दैट इज सेम, राइट? इंडिया में उतनी ही जनता है, इंडिया की जनता सब्सटेंशियली नहीं बढ़ने वाली. तो प्रॉब्लम विद द इन्फ्लुएंसर इज सबसे अच्छा कौन, सबसे अच्छा ट्रस्टवर्दी कौन. द मोमेंट जब नॉइज हो जाती है ना, जैसे मान के चलते हैं आज यूट्यूब पे सबसे ज्यादा कंटेंट है, लेकिन आज यूट्यूब पे अगर आप कंटेंट ढूंढने की कोशिश करोगे ना, उससे बेटर कि मैं किसी को 5,000 रुपए देखूं, मैं उसका बेस्ट कोर्स बाय कर लूं, राइट? एक अपॉर्चुनिटी है उन इन्फ्लुएंसर्स के लिए जिन्होंने एक मैसिव ट्रस्ट स्कोर बिल्ड किया है. वो अपने आप को इस तरह से मार्केट में पोजीशन करें. इवन दे चार्ज प्रीमियम, द रियल एस्टेट ब्रांड और एवरी डैम ब्रांड ऑफ कपड़ा कुछ भी एनीथिंग लाइक. तो अगर आप एक रियल एस्टेट या कोई भी कंपनी और आपको अच्छे इन्फ्लुएंसर चाहिए अपनी ब्रांड के लिए, तो आपको बहुत थॉटफुल तरीके से देखना पड़ेगा. ना सिर्फ आप ये देखिए उसके सब्सक्राइबर कितने हैं, आप देखिए कन्वर्सेशंस कितनी बिल्ड हो रही हैं. और मतलब छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स अपने पोस्ट पर, अपने वीडियोस पर फेक कन्वर्सेशंस भी बिल्ड करता है. Then as a founder of the real estate company or as a kind of member of a real estate or any damn company, you have to observe very thin thing. I have seen massive influencer जिनकी ऑडियंस सिर्फ 25,000 की है, पर वो उनको इतना ट्रस्ट करती है कि अगर वो एक बार स्टोरी पे कुछ डाल दे या पोस्ट पे कुछ डाल दे, every audience will mobilize. Versus there are people जिनके पास में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और जब उन्होंने इंस्टाग्राम ग्रुप बनाया तो वहां पे 5,000 लोग नहीं है. And actually a big thing, क्यों नहीं है? और मे बी फेक और मे बी दे आर नॉट एंगेज और दे आर नॉट एंगेजिंग, कनेक्टिंग, रिप्लाई नहीं करा, बात नहीं करा, उस बात का रिस्पांस. मुझे लगता है ये पॉइंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप एक इन्फ्लुएंसर चुने, इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें. अगर आप ये ध्यान देंगे, जो ROI आएगा आपके इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन से, वो बहुत अमेजिंग होगा. आई विल से कि कन्वर्सेशन और इतनी अच्छी जा सकती है. इट्स बीन टाइम का थोड़ा कम है. थैंक यू फॉर टेकिंग आउट. आई नो यू नीड टू लीव. यू हैव बीन गिविंग योर बेस्ट टुडे एंड तुझे लखनऊ जाना था तो यहाँ फिर भी आया भाई. Thank you so much for that. I really appreciate and looking forward always to be in touch. Thank you, Mandy. What do you call this? Thanks for coming on the podcast. And I wish Mandy का ये जो शो है वो super successful हो, because मुझे पता है the quality of guests they are coming, right? And if you have not subscribed this channel, you should. मुझे लगता है काफी पोटेंशियल है और इस तरह का क्वालिटी कंटेंट अगर आपको देखने मिलेगा उन लोगों से जो इस पॉडकास्ट में आएंगे, it will be very beneficial for the people.
Please follow. Please follow. It's the best you can support. And Shum, thanks a lot for You're welcome. coming.